استنبول میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس میں ایران کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی جائزہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے، سیکرٹری جنرل OIC۔ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت۔ اقوام عالم متحد ہوتی تو غزہ میں اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی۔ مسلمان متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرے۔ اسرائیلی اقدامات بے لگام، جارحانہ اور غیر قانونی ہیں۔ ہمیں خطے کو مزید تباہی اور خونریزی سے بچانا ہے۔ ہم سب نے متحد ہو کر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم امن کے داعی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب۔ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے میں کردار ادا کرنے پر زور۔ ایران اسرائیل جنگ کا نواں روز۔ ایران کا اسرائیل کے جنوبی علاقے پر میزائل حملہ۔ ٹیکنالوجی پارک کمپلیکس کی عمارت تباہ۔ مائیکروسافٹ کا دفتر بھی متاثر۔ قریبی رہائشی عمارتوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ شمالی اسرائیل میں بھی دھماکے۔ اسرائیل کے بھی ایران میں متعدد مقامات پر فضائی حملے۔ حملوں میں فضائیہ کے 60 سے زائد جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ حملوں میں جوہری ہتھیاروں کے تحقیقی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت دفاع سے وابستہ دفاتر بھی زد میں آئے۔ ایران کی درخواست پر طلب کردہ سلامتی کونسل کا اجلاس۔ ایران اسرائیل تنازع کا مکمل حل چاہتے ہیں۔ سلامتی کونسل سے آج امن کا واضح پیغام جانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی مندوب۔ اسرائیل نے جارحیت کر کے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکورٹی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے، چینی سفیر۔ ایران کی تنصیبات پر حملوں سے سنگین خطرات لاحق ہوئے۔ نتنز سے تابکاری کے کوئی شواہد نہیں ملے، سربراہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی رافیل ماریانو گروسی۔ روس کا ایران اسرائیل کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ ایران کا جوہری پروگرام عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ روسی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ ایران کے عوام پر بلا جواز جنگ مسلط کی گئی۔ ایران اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنا حق دفاع استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران اور غزہ میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ ایران اسرائیل جنگ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مذاکرات سے پہلے سیز فائر ہونا چاہیے۔ ایران پر حملے سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، فیصلہ 2 ہفتوں میں کروں گا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق انٹیلیجنس چیف تلسی کا بیان درست نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کی جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری قرار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور مزید پیش رفت کی امید کا اظہار۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ بھی ملاقات میں شریک۔ جامع اور پائیدار ترقی ہمارا عزم ہے۔ سینٹ میں دی گئی تجاویز ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم نے افراط زر پر قابو پایا۔ سولر پینل پر 10% ٹیکس کا اطلاق، 40% درآمدی پرزہ پر ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کو سختی سے متنبہ کرتا ہوں کہ وہ عوامی استحصال نہ کریں۔ FBR قوانین میں مزید سیف گارڈز شامل کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ عالمی تصوراتی اور سفارتی افق پر حکومت پاکستان کا قابل تحسین فیصلہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی تجویز۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹلا اور امن کی راہ ہموار ہوئی۔
सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को अजीम मुल्क, अजीम क़यादत से ताबीर करके आलमी सतह पर पाकिस्तान की वक़ार को बुलंद किया। भारत की तमाम चालें नाकाम, सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर को दोबारा आलमी सतह पर जिंदा कर दिया। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की आलमी अहमियत का बारहा एतराफ़, पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार ख़राज तहसीन पेश किया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। सदर ट्रंप के अमन इक़दामात पर पाकिस्तान मुतमईन, भारती तज़ब्ज़ुब और खिस्यानापन दुनिया पर आश्कार। अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया में पाकिस्तान की वक़ार को बुलंद किया, भारत की जारहाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों को नाकाम किया, नाजुक सूरत हाल में अहम तज़वीराती बसीरत का मुजाहरा किया। ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत ने पाकिस्तान और भारत के साथ सिफारती राबते उस्तवार किए। उम्मीद है सदर ट्रंप की मुखलिसाना काविशें इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में मुस्बत किरदार अदा करेंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली से गुज़श्ता माह जनूबी एशिया में तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। पाकिस्तान अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कद्र की निगाह से देखती है। पाकिस्तानी अवाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पसंदीदगी में तेज़ी से इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप है अमरीकी प्रेसिडेंट, उन्होंने जो भरपूर किरदार अदा किया है वो न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक अमन का बहुत काविश थी, अमन का पैगाम था। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह मुस्बत रोल अदा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी करवाई, वो उनका ये बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया के जो अफराद है इस कारनामे को खूब सराहते हैं। हुकूमत का सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश को खुशाइन करार दिया। पाक भारत जंग में अदा किया, इस लिहाज से हम उसे मुस्बत देखते हैं। पाक भारत जंग कशीदगी जिस हद तक बढ़ चुकी थी और 2 न्यूक्लियर एटमी ताकतें थी, इससे बहुत बड़ा नुकसान होना था और अमेरिका के सदर ट्रंप ने इसमें अपना बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा जो है एक अच्छा इक़दाम उठाया और दोनों जो है ममालिक के जो आला क़यादत को उन्होंने बाकायदा कहा कि इनको सुलह की जाए आपस में, और ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम था ट्रंप का। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक जो एटमी ताकत रखते थे, जिनके पास एटमी हथियार थे, अगर वो इस्तेमाल होते तो दोनों ममालिक का बड़ा नुकसान होना था। अहम किरदार अदा करते हुए इन्होंने जंग जो है वो खत्म करी, जंगबंदी की गई। ट्रंप का जो किरदार है जंग रुकवाने में वो बहुत अहम है, जिससे 2 मुल्क तबाही से बच गए, बल्कि पूरी दुनिया तबाही से बच गए, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी कोशिशों की पेशकश जाहिर की है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे न सिर्फ खित्ते में अमन की एक खुशगवार तब्दीली आएगी, बल्कि ये सियासी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हमायत भी है। जो ट्रंप का किरदार था वो बिल्कुल इस मामले में जो है लायक तहसीन तक, इसने 2 एटमी ममालिक को जो कि बहुत बड़ा खतरनाक फेज की तरफ खुदा न खास्ता जाने वाली थी उससे रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ईरान इसराइल कशीदगी समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का संगीन बहरान के पुरअमन हल के लिए बातचीत और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान अमन की किसी भी कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ करते हैं। अमरीका इलाकाई आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के करीबी ताउन का कहाँ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए नाकाबिल फरामोश जद्दोजहद, आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तिकामत से मज़ाहमत की। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानियाँ, विजन और अवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई मीरास है। मोहतरमा के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर पैगाम। मुल्क को एटमी ताकत बनाना और आइन देना शहीद भुट्टो के अहम कारनामे हैं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक कौमी सानहा था। वो जिंदा होती तो आज के बहरानों का सामना न करना पड़ता। महरूमियों का हल सिर्फ नए सूबे के क़याम में है। सूबा बनेगा तो रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का खिताब।
गुज़श्ता रात स्वाबी में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शाह मंसूर में अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और वरसा की शिरकत। वज़ीर आज़म की वाक़े की मसम्मत, पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की वाक़े की तहकीकात और ज़िम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। दहशत गर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म आलमी माहिरीन की जानिब से मोदी सरकार के खुद साख्ता जंगी कारनामे की सख्ती से मुस्तरद। अमरीकी माहिर उमूर सिक्योरिटी प्रोफेसर क्रिस्टिन फेयर ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। भारतीय दावे मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को 20% नुकसान का भारतीय दावा झूठ का शाहकार। वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि भारत ने 5 जंगी तैयारे खोए। प्रोफेसर क्रिस्टिन फेयर वफाकी हुकूमत का सना यूसुफ केस को मजबूत बनाने के लिए कानूनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मकतूला टिक टॉकर के लवाहिकीन से मुलाकात। मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ई व्हीकल से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को नई तवानाई पॉलिसी से मुतालिक आगाह किया। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान का लाहौर में नई तवानाई व्हीकल पॉलिसी वर्कशॉप से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब के देहात में रहने वाली ख़वातीन के लिए तारीखी इक़दाम। रोज़गार के सिलसिले में खुद मुख्तार बनाने के लिए माल मवेशी देने का फैसला। 12 अजला में गरीब और बेवा देहाती ख़वातीन को 2 अरब रुपए से भैंसें और गायें दी जाएंगी। औरत शहर में हो या देहात में, तालीम, सेहत और रोज़गार उसका बुनियादी हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। पंजाब में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज के शुरू करदा मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं और कुछ मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के तमाम हस्पतालों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गली मोहल्लों के सीवरेज निकासी के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है। पंजाब के देहातों में पहली मरतबा साफ़ पानी मुहैया किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी और ज़ीशान रफ़ीक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद, बहादुरी की लाजवाल दास्तान। 26 मई 2024 को पिशावर के इलाके हसन खेल में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम के बहादुर बेटे ने खतरात से घबराने के बजाय फ़र्ज की राह चुनी, वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद की कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। इसराइल मुसलसल दूसरे साल भी अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल। इसराइल को गज़ा में बच्चों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। इसराइल गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का मर्तकब पाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में सेहूनी फोर्सेस के हाथों मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इजरायली हमलों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। सेहूनी फोर्सेस ने दीरुल बलाह में एक घर को निशाना बनाया, 11 अफराद शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइली जारियत में शहदा की मजमूई तादाद 55,706 तक जा पहुंची। आज दुनिया भर में साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 14 से 15 घंटे होगा। आज के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम और रातें तवील होना शुरू हो जाएंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में 23 जून तक मजीद बारिशों का इम्कान। 26 जून से प्री मानसून बारिशें। रवा साल मानसून बारिशें मामूल से 25% जायद होने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात में 40 से 60% ज़्यादा बारिशें मुतवक्के।